السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کی حکومت ایک اور جج کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ گزشتہ دنوں یہ 2-3 دن پہلے ایف آئی اے نے ایک چھاپا مارا تھا صحافی محسن بیگ کے گھر پہ، اور پھر صحافی نکل آئے، سیاسی جماعتیں کھڑی ہو گئیں، تو محسن بیگ کو عدالت میں پیش کرنا پڑا تھا۔ تو اس عدالت نے ایڈیشنل سیشن جج ہیں ظفر اقبال ملک اسلام آباد کے، انہوں نے سماعت کی اور اس کو ایف آئی اے کے چھاپے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس جج کے خلاف بھی ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ حکومت پہلے بھی، یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہوگا کسی جج کے خلاف پی ٹی آئی کی حکومت ریفرنس لائے گی۔ اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس لایا گیا، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنے کا فیصلہ سنایا تھا، اور وہ وہاں پہ باوردی لوگوں نے جو پیسے بانٹے تھے مظاہرین میں، کہ جب مظاہرہ ختم کرا رہے تھے تو اس وقت ظاہر باوردی لوگ تھے اور پیسے تقسیم ہوئے تھے، تو اس پر جج نے فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف، اور اس جج کے خلاف بھی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی ریفرنس دائر کیا گیا، لیکن صدارتی ریفرنس۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کے ساتھ مقابلہ کیا اس ریفرنس کا، اور وہ ریفرنس جیت گئے، اس میں حکومت کو کچھ نہیں ملا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بھی ایک فیصلہ دیا تھا، سخت ریمارکس دیتے تھے، بہت سارے فیصلے ان کے سخت تھے، وہ بھی حکومت کو، اداروں کو، طاقتور اداروں کو سوٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو بھی ریفرنس دائر کر کے ہٹا دیا گیا، ان کا بھی کیس عدالتوں میں ابھی زیر سماعت ہے۔ تو اب ایک اور جج کے خلاف حکومت پیچھے پڑ گئی ہے، اور حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جسٹس ظفر اقبال ملک جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں اسلام آباد کے، ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جج نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، اور جج کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اس طرح کے ریمارکس دے وغیرہ۔ تو اچھا، اس میں نیاز اللہ نیازی کی جو میڈیا ٹاک ہے، میں کوشش کر کے 2-4-8 جملے اس کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے اس کا مقابلہ، اس کو مذمت کی ہے اس فیصلے کی، حکومت کے فیصلے کی، اور یہ کہا ہے کہ ہم جج کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور اچھا، نیاز اللہ نیازی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ محسن بیگ نے ادارے کے اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ ایڈیشنل سیشن جج نے اپنے فیصلے میں جو لکھا ہے وہ مینڈیٹ سے تجاوز ہے۔ یہ وزیر اعظم کے حوالے سے نیاز اللہ نیازی ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کہہ رہے ہیں کہ جج نے جو اپنے فیصلے میں لکھا ہے وہ مینڈیٹ سے تجاوز ہے، اور جب بندہ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کا مینڈیٹ ختم ہوگا۔ نیاز اللہ نیازی کہتے ہیں کہ ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف انتظامی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دیں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف کارروائی کی درخواست کریں گے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیاز اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ جج کے آبزرویشنز متعصبانہ ہیں، جج کی آبزرویشنز متعصبانہ ہیں، جو ان کا مینڈیٹ نہیں تھا۔ چیف جسٹس کو انتظامی سطح پر بھیجی جانے والی شکایت جج کے خلاف ریفرنس ہوگی، یعنی درخواست دی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، اور اس میں انہیں درخواست میں کہا جائے گا کہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اپنے جو اختیارات ہیں اس سے تجاوز کیا ہے، اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو یہ درخواست جو ہے یہ خود ریفرنس ہوگا انتظامی سطح پر جب دی جائے گی۔ اچھا، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے اس کی مذمت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن 16/2/2022 کے ایشو پر وزیر اعظم، حکومت اور ایڈوکیٹ جنرل آفس کی جانب سے اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں متعین ایک شریف النفس اور ایماندار ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو قانونی فیصلے پہ غیر ذمہ دارانہ اور تضحیک آمیز رویے کی نہ صرف شدید مذمت کرتی ہے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، بلکہ اس اقدام کو جوڈیشری اور قانون کی حکمرانی پر شب خون اور من پسند فیصلوں کے حصول کی خواہش تصور قرار دیتی ہے۔
तमाम अरबाब इख्तियार को कानून की हुक्मरानी के लिए इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का किरदार और कुर्बानी याद रहें। जिस भी इदारे, ऑफिस या शख्स को अदलिया, इंसाफ और कानून पर शब खून मारने के लिए इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के मजबूत और मुनज़्ज़म रुकावट को अबूर करना होगा। हम मुतल्लिका अरबाब इख्तियार से पूछते हैं कि अगर सिविल कपड़ों में अफराद शहरियों को अगवा करें, ये जुमले देख लीजिएगा, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन कह रही है, जो हम कह रहे थे कि, और जो मोहसिन बेग कह रहे हैं कि भाई सिविल कपड़ों में FIA अलकार आए, मेरे घर में घुस आए, मुझे क्या पता, उनके माथे पे तो लिखा नहीं था कि ये FIA है और छापा है, कोई पुलिस अलकार उनके साथ होता, पुलिस भी इन्होंने खुद मंगवा ली। तो बहरहाल इस्लामाबाद बार एसोसिएशन भी अरबाब इख्तियार से ये पूछती है कि अगर सिविल कपड़ों में अफराद शहरियों को अगवा करें, मकामी थाना अदालती बेलफ को थाने में दाखिल न होने दे, रोजनामचा बेलफ को न दे, FIR की नकल बेलफ को न दे, SHO थाने में अदालत में खुद को और मुगवी को पेश करने से इनकार कर दे, SHO जो है अदालत में खुद को और मुगवी को पेश करने से इनकार कर दे, गिरफ्तारी की दस्तावीज़ सिरे से मौजूद ही न हो, बाद अज़ां गुज़रे वक्त की FIRs दी जाएँ, खुद साख्ता रपट रोजनामचा दी जाए, तो इसमें दर्ज अफराद और ख़ुद इस रपट का ज़िक्र उनको दी जाए। अच्छा, इसमें यहाँ पे अच्छा दी जाए, तो इसमें दर्ज अफराद और ख़ुद इस रपट का ज़िक्र उनकी दी हुई FIR में मौजूद ही न हो, तो मुअज़्ज़िज़ एडिशनल सेशन जज साहब को कानून के मुताबिक हुक्म जारी करना चाहिए था, या फिर इंतज़ामिया की ख्वाहिश पर। याद रहे कि अगरचे इस्लामाबाद बार एसोसिएशन बहुत से मामलात पर अदलिया से मायूस और दुखी है, और उसके साथ साथ साफ़ी बरादरी के माजी में तलख मामलात में इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ पेश करने से कासिर रही है, लेकिन किसी भी हालत में इस्लामाबाद बार एसोसिएशन इंसाफ और कानून की अलमबरदारी की बुनियादी हुसूल की हिफाजत हर इख्तलाफ राय से बालातर होकर करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि वतन अजीज़ के तमाम अरबाब इख्तियारात कानून के अलमबरदारी में अब रुकावट न डालेंगे। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन मुअज़्ज़िज़ एडिशनल सेशन जज साहब के जुर्रतमंदाना फ़ैसले को तहसीन की नज़र से देखती है। अगर इस इशू पर किसी जानिब से कोई रेफरेंस आता है तो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन उसमें खुद फरीक बन जाएगी। ये है जी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का एलामिया, और इजलास हुआ है। उस एलामिया में ये कहा गया है कि अगर एडिशनल सेशन जज मलिक ज़फ़र इकबाल मलिक के ख़िलाफ़ हुकूमत कोई रेफरेंस लाती है तो हम इसमें इस्लामाबाद बार एसोसिएशन इसमें फ़रीक बनेगी, और मज़म्मत भी की गई है, सवालात भी उठाए गए हैं कि भाई हुकूमत बताए कि ये कानूनी था या गैर कानूनी था। एडिशनल सेशन जज का जो फैसला है जिसमें FIA के छापे को गैर कानूनी, पहले दिन ही गैर कानूनी करार दिया है एडिशनल सेशन जज ने कि FIA अहलकारों ने, अच्छा बड़ा मज़ेदार सीन है ना, खुद वो तस्लीम कर रही हैं मुराद सईद जो FIR जो फरियादी हैं, जिन्होंने जो मुद्दई है, उन्होंने लाहौर में जो फरियाद FIR कराई, जो शिकायत की, उसमें उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो हमने सवाल किया सहाफ़ियों ने कि भाई आप बताएं, आपको इतनी क्या जल्दी थी कि आप 9 बजे लाहौर में दरख्वास्त FIR करा रही हैं, शिकायत दर्ज कर रही हैं, और 9:15 बजे इस्लामाबाद में FIA छापा मार रही है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, मुमकिन हुआ कि 15 मिनट के अंदर लाहौर से इस्लामाबाद FIA पहुंच गई और सिविल कपड़ों में गए हैं, मुतल्लिका थाने को कोई इतला नहीं है, पुलिस को साथ नहीं लेके गए। सिविल कपड़ों में किसी के घर में अगर लोग घुस आए तो फिर आगे घर वाला, उनके पास असलहा भी लाइसेंस का हो, बड़ा आदमी हो, सहाफ़ी हो, कोई अखबार का मालिक हो, न्यूज़ एजेंसी का मालिक हो, इमरान खान का दोस्त भी है तो ज़ाहिर बड़ा आदमी है मोहसिन बेग भी, तो उनके पास असलहा तो अपना था, तो वो क्या करता, वो उनको कहता कि जी लूट लो घर को, मैं खड़ा हूँ। ये तो होता नहीं है ना। या तो अच्छा जाली भी ID कार्ड बनते हैं, जाली कार्ड किसी के भी बन सकते हैं, FIA के भी बन सकते हैं, बहुत सारे लोग जाली अलकार गिरफ्तार होते हैं, खबरें ये पढ़ने में आ रही होती हैं। तो मोहसिन बेग ने फायर शायर उन पे किया। हाँ, मोहसिन बेग ने कोई किसी पे हमला किया हो, थाने पर हमला किया हो, किसी अलकारों पे घुसकर हमला किया हो, तो वो फिर केस बन सकता था। इन्होंने दहशतगर्दी का केस लगा दिया मोहसिन बेग पे,
एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत केस लगा दिया है कि जी हमला किया है। तो जो मुराद सईद हैं उनसे जब पूछा गया आपने ऐसा काम क्यों किया, मुतनाज़ा किस्म का इकदामात क्यों किए कि आपने 9 बजे एफआईआर कराई और 9:15 बजे छापा लगा, जिसको अदालत ने, जज ने भी गैर कानूनी करार दिया, तो आपने ऐसा काम क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि जी देखें, मेरा काम था कानूनी चाराजोई करना, और अब तरीक़ेकार क्या अडाप्ट किया गया है, ये तरीक़ेकार जो है वे ये इदारे से पूछा जाए, यानी FIA से पूछा जाए। तो बहरहाल हुकूमत जो इक़दामात कर रही है, अभी एक कोई अलकार मिला मुझे सरकारी किसी इदारे का, अभी मुजाहरा था, उसमें मुझे मिला, तो मुझे PTI के हुकूमत के इक़दामात के बताने लगा कि मुझे कहा कि यार देखें, जब भी कोई हुकूमत जाने वाली होती है ना, जब उसके आखिरी दिन चल रहे होते हैं, तो इस तरह के हुकूमत से इक़दामात कराए जाते हैं या हुकूमत करती है। आखिरी जाते जाते जो है आखिर में कुछ न कुछ गड़बड़ करके जाती है। तो ये आखिरी इनके हाथ पांव मार रहे हैं कि हुकूमत के दिन कुछ मज़ीद चले हुकूमत, या हुकूमत बच जाए। जो कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, सियासी जमातों के ख़िलाफ़, जो फिर जजों के ख़िलाफ़, अब जजेस के ख़िलाफ़, एक और जज के ख़िलाफ़ यानी एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ज़फ़र इकबाल मलिक, जिन्होंने मोहसिन बेग के घर पर FIA के छापे को गैर कानूनी करार दिया है, और उन अहलकारों के ख़िलाफ़ IG इस्लामाबाद को हुक्म जारी किया है कि वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अब इस फैसले को हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है। इल्ज़ामात लगा रही होती है कि जी नून लीग ठीक नहीं कर रही होती, अदलिया के साथ हमले कर रही होती है, पीपल्स पार्टी अदलिया के साथ ठीक नहीं चल रही होती, हम अदलिया के जी सर तस्लीम है खम। इमरान खान अदालत में जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं जी। जो पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल का मामला था, तो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं जी, देखें हम अदालत के सामने। भाई अदालत के सामने आप खड़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो अदालत फैसले दे रही होती है, ये अदालत नहीं है ज़फ़र इकबाल मलिक एडिशनल सेशन जज की, ये भी तो अदालत है। अदालत तो अदालत होती है। तो जो अदालत है उसके फैसले को आप फैसलों को मान नहीं रहे, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के फैसलों को आप मानते नहीं हैं, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के फैसलों को आप मानते नहीं हैं। तो जो कठपुतली किस्म के जज रहे हैं साकिब निसार जैसे, अब उन पे आप रिलाय कर रहे होते हैं, जिनके अभी कच्चे चिट्ठे खुलने लगे हैं। राना शमीम जो है चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान, वो तो कच्चा चिट्ठा खोल चुके हैं, हल्फिया बयान दे चुके हैं, जमा करा चुके हैं। राना शमीम साकिब निसार के ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस, यार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, और वो ये बात करें कि जी ये मरीम नवाज़ को नाअहल करार देना है, तो नवाज़ शरीफ को नाअहल करार देना है, फ़लाँ को ये इदारों का हुक्म है, इस तरह की बातें। तो ये एक्सपोज हो गई है हुकूमत के दावे जो हैं, एक पाकिस्तान, कानून की अमलदारी और अमीर गरीब के लिए एक ही कानून, ये सब धरे के धरे रह गए हैं। अब हुकूमत के लग रहा है कि हुकूमत के जो इक़दामात हैं, हुकूमत की जो परेशानी है कि सहाफ़ियों के घरों में इदारों को बग़ैर वर्दी के इदारों को घुसा देना और जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस की तैयारी करना, ये मुझे लग रहा है कि ये आखिरी दाव होगा हुकूमत का। और इसी में शायद ये जज का जो, अगर हुकूमत रेफरेंस वाकई लाती है जज के ख़िलाफ़, तो इसमें भी हुकूमत का मुहासबा हो सकता है। वैसे ही अपोजिशन तैयारी कर रही है वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की, तो अपोजिशन के राब्ते शाब्ते भी चल रहे हैं। देखते हैं हुकूमत रेफरेंस पहले लाती है या वज़ीर आज़म पहले घर चले जाते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।